Hello, good afternoon, all. Last lecture we have started with advantages of Hadoop. In last lecture we have seen history of Hadoop. We have seen what is HDFS in detail. Under that we have seen the diagram. We have seen how the file has been cut into the different blocks of the same size. That 128 MB is the fixed size, default size. We have seen a replication management. We have seen that replication count can be set by the user. On slide you can see the command that by which user can set the replication count. So we have already seen rack awareness, also we have seen goals, features, common. Yes. Let's start with the today's lecture with common shell commands. See student, while doing the practicals, the first practical of our DSBDA is installation of Hadoop. Once we have installed Hadoop on our Ubuntu system, so during the practical performance you may have to come up with this Hadoop shell commands. So in today's lecture we are going to see that which kinds of commands are available with the Hadoop to deal with the shell. Okay, so HDFS is the primary major component of the Hadoop, which is responsible for storing large data sets of structured and unstructured data across the various nodes. Okay, are you getting that? Using Hadoop, what we are doing, we are trying to store our data, we are trying to process our data. Okay, storage, not only the data, it's large data. Okay, to use the HDFS command, first you need to start the Hadoop services using the following command. See student, this is very important, that what I am trying to show that before starting your practical on Ubuntu system, after the installation of Hadoop, you have to first, like if you entered into the room, you are going to supposed to switch on the light. Likewise, first you have to switch on the Hadoop. So for to make on Hadoop, you have to put a command that yasbin start. Wait a minute. So this command, this sbin start.sh command you have to perform. Okay, so to check Hadoop services are up and running, use the following command. ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ये क्यों डालनी है कमांड, आपको देखना है कि पूरी जो हडूप की सर्विसेज है, जो रिसोर्स मैनेजर है, नोड मैनेजर है, जेपीएस है, ये सब चालू हुए हैं कि नहीं, ये देखने के लिए आपको वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के सामने क्या डालना है, जेपीएस. ओके, once you put JPS, you can see here, I will try to show you that, see this JPS, this one, this JPS you have to put, and after putting the JPS, if you found the list like secondary name node, data node, secondary name node, data node, name node, resource manager, node manager and JPS, अगर आप ये 6 आपको आते हैं sequentially after putting JPS, it means that your Hadoop is going to start, or you can say the services are ready to use. Okay, after that you will find prompt like this, you will find the command like this. So after that you can put your different kinds of shell commands here in front of this. Okay, so whatever this you are looking, Suraj @ is the directory, and hence your Hadoop is started here. Okay, so जितनी भी अभी आपको मैं इसके बाद कमांड बताने वाली हूँ, वो आपको ये वाली जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये वाली, सॉरी
ये वाली, ये एंड वाली, ये ब्लू लाइन के बाद आपको वो सारी की सारी कमांड्स क्या करनी है, डालनी है। ओके, आज के लेक्चर में पूरी शेल कमांड्स देखेंगे, कितने काइंड्स की शेल कमांड्स होती हैं एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कमांड। लेट्स स्टार्ट विद द कमांड्स एंड द फर्स्ट कमांड इज ls कमांड। ओके, so see here how ls you need to put here. ls will print all the directories present in the hdfs. ls कमांड क्या करेगी, जितनी भी डायरेक्टरीज अभी आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है उतनी सारी की सारी जो डायरेक्टरीज है आपको शो अप करेगी। So fine, this one is the command and see ls you have to put here. You can see here ls, this one. Let me show you. See this ls we have put it here. See, so this ls we have put it here. After that, all directories present in that particular hdfs folder are going to show you bin/hdfs dfs/ls. ओके, तो ये कमांड हम लोगों ने ls डाली है पूरी डायरेक्टरीज देखने के लिए। सेम काइंड का पर्पल कलर का इंटरफेस आपको रहेगा एज आई एम शोइंग ऑन द स्लाइड। परफेक्टली यही कलर का, यही लुक का आपको इंटरफेस रहेगा और सेम इसी तरह से, सिर्फ ये सूरज @सूरज है, इसकी डायरेक्टरीज चेंज रहेगी। बाकी ये जो वर्जन है हडूप का, ब्लू कलर में आप लोग लाइन देख रहे हैं, ये वर्जन है हडूप का, ये लाइन भी जैसे कि वैसी रहेगी। ये bin/hdfs dfs, दिस इज द टेक्स्ट syntax to put the particular shell command. Okay, so ls is the first command. Let's move to the second command. Second command is mkdir. To create a directory in Hadoop DFS, there is no home directory by default, so let's it first create the syntax. तो हमने bin/hdfs dfs तो ये कॉमन था, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट किया है, mkdir। देखो यहाँ पे mkdir पुट किया है। ओके, सो दिस वन इज द सिंटैक्स। एंड अगर आप आपके क्या बोलते हैं इंटरफेस पे अगर आप देखना चाहते हो कि हाउ mkdir नीड टू पुट, सो लेट्स मूव टू द, ओके द स्लाइड इज नॉट कंटेनिंग, just replace this ls with the mkdir. Fine, so it will make a new directory for you. Okay, now let's see one by one command. So this -lsr -ls -du -dus -mv, ये आपको वो पर्पल कलर के इंटरफेस में जहाँ पे हमने -ls पुट किया था वहाँ पे आपको ये सारी की सारी कमांड पुट करनी है, आपको जैसे भी नीड है वैसे। सो बिफोर फाइंडिंग यूर नीड यू मस्ट हैव टू नो दैट विच कमांड इज यूज फॉर which purpose. Okay, so for that let's look into the table. First one is the ls, so list the content of the directory specified by the path. जो भी path आप दोगे और जहाँ भी डायरेक्ट करोगे वहाँ की सारी प्रेजेंट डायरेक्टरी आपको शो करेगा। -lsr behave like a ls, ये भी डायरेक्टरी दिखाएगा बट रिकर्सिवली डिस्प्लेज एंट्रीज इन ऑल सब डायरेक्टरीज ऑफ द पाथ। गेटिंग? सो -du एंड उसके बाद path shows disk usage in bytes for all the files which path file names reported with the full HDFS protocol prefix. Okay, ये if you are doing the practical or if you are working on that particular technology, that HDFS shell commands, so it will be very easy to remember you that if your daily work is there to play with such commands, so it will be very helpful. And अभी अगर आपके ध्यान में नहीं रहता है तो fine, you have to study it. Okay, -dus, it is like du, sorry, we have seen du. Yes, it is like a du but prints a summary of the disk usage of all the files directories in the path, while -mv source and destination आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, moves the file or directory indicated by the source to the destination within HDFS. ओके, हडूप के अंदर आपको अगर फाइल मूव करनी है तो आपको -mv यूज़ करना है। फाइन, मूव -cp,
CP यानी कि कॉपी, कॉपी इज द फाइल डायरेक्टरी आइडेंटिफाइड बाय द सोर्स टू द डेस्टिनेशन विद इन HDFS। ये कॉपी करके देखा आपको, विद इन HDFS के बारे में ही हम सारी शेल कमांड्स बोल रहे हैं, इसीलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आफ्टर एवरी कमांड नीड टू से लाइक विद इन HDFS. ओके, ऑल कमांड्स आर प्लेइंग विद इन HDFS ओनली. सो डैश RM, RM means remove the file empty directory identified by the path. Dash RMR removes the file directory identified by the path but recursively deletes any child entries. Okay, so dash put copies the file directory from the local file system identified by the local source and destination within DFS. आपको हडूप के अंदर आपके पीसी में प्रेजेंट होने वाली अगर कोई भी फाइल लानी है हडूप के अंदर, तो आपको ये कमांड यहाँ पे यूज़ होंगी पुट नाम की. ओके, जैसे कि आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर कुछ आपको वॉलपेपर इंसर्ट करना है, तो आप काम तो पावर पॉइंट में कर रहे हो, यानी कि काम तो हडूप में कर रहे हो, बट अगर आपके सिस्टम से आपको कुछ वहाँ पे पुट करना है तो यू विल यूज़ दिस कमांड. ओके, डैश कॉपी फ्रॉम लोकल आइडेंटिफाइड टू पुट. ओके, देन dash move from local, so it is like copies the file directory or from the local file system identified by the local source to the destination within HDFS. ये within HDFS अभी मैं पढ़ने नहीं वाली हूँ इसके बाद. ओके, dash get, what you think? Copies the files or directories in HDFS identified by the source to the local file system path identify the लोकल सोर्स. ओके, ये सारा जब तुम हडूप के अंदर प्रोसेसिंग कर रहे हो तो तुम्हारे लोकल सर्वर पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो प्रोसेसिंग के लिए आपको फेच करना है, तो ये सारी कमांड्स आपको काम में आएंगी. गेट मर्ज है, गेट मर्ज रिट्राइव्स ऑल द फाइल्स दैट मैच द पाथ सोर्स इन HDFS. देन डैश कैट है, डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द फाइल सिस्टम stdio.out की तरह. ओके, फिर डैश कॉपी टू लोकल है, ये गेट की तरह काम करेगी, ये कॉपी करेगी. डैश मूव टू लोकल है, ये मूव के लिए है. डैश MKDIR है, जो अभी हमने प्रीवियसली देखा, 2 नंबर की कमांड मेक डायरेक्टरी. डैश सेट रेप्लिकेशन है, तो ये क्या करेगी, सेट द टारगेट रेप्लिकेशन फैक्टर. आपको मैंने पहले बोला था ना, इससे पहले यूज़र कैन सेट द रेप्लिकेशन फैक्टर दैट व्हाट द यूज़र वांट, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. सो दिस कमांड विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल देयर फॉर ऑल ऑफ यू. डैश टेस्ट रिटर्न्स 1 if path exists and return has 0 length or directory or 0 otherwise. Sorry for very funny reading. You can read it properly while studying. Fine, this will be the commands. Okay, इतनी ही commands नहीं है, there are lots of shell commands available. Okay, these are some of for your study purpose only. As you are reading for your study, you read much more, there you will find many more commands. Okay, so these are some of the commands. Now anatomy of file write and read in HDFS. Anatomy, fine, this will be the meaning for all of you here. Anatomy is a study of the structure of internal working of something. कि एक्चुअली HDFS के अंदर जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, लार्ज डेटा जो स्टोर कर रहे हैं, उसका स्टोरिंग एंड फिर उसका रीडिंग. स्टोरिंग यानी कि राइटिंग एंड फिर फेच करना यानी कि रीड करना एक्चुअली हो कैसे रहा है, यानी कि पूरा अंदर का आर्किटेक्चर यानी कि एनाटॉमी. ओके, सो एनाटॉमी ऑफ फाइल रीड इन HDFS. पहले हम देखेंगे रीड कैसे करते हैं HDFS में, then we will see the anatomy for write. Okay, let's get an idea of how the data flows between the client interacting with HDFS, the name node and the data nodes with the help of the diagram. Consider the diagram. Okay, you will see the diagram. This is somewhat blur, but sorry for it, I have only this diagram with me. So HDFS client अगर कुछ रीड करना चाहता है, ओके, तो रीड करने के लिए भी ओपन करना पड़ेगा. अगर कुछ राइट करना चाहता है क्लाइंट, तो भी उसको पहले ओपन ही करना पड़ेगा. फाइन, you all are aware about the operating system, so you can understand me that what I am trying to tell you. Okay, so once HDFS client will be on the
commodity server, he want to write, okay, because we are trying to see anatomy for read first. So client is here. See, first action is what? Open. तो ये क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो भी हमारा है उसको ओपन बोलेगा एंड गेट बैक टू द लोकेशन. नेम नोड के पास जाएगा. नेम नोड कौन होता है? मास्टर होता है. मास्टर के पास क्या होता है? सब चीज़ों का एजेंडा होता है एंड पूरा लॉग होता है. ओके, जो भी उसको चाहिए उसने उसका, जैसे कि इंडेक्स में आप देखते हो कि कोई भी पॉइंट चाहिए तो पहले पेज नंबर लेते हो इंडेक्स से, फिर बुक में जाते हो अंदर. उसी तरीके से नेम नोड से वी आर चेकिंग द लॉग्स, फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर फाइल इज वेयर लोकेटेड इन विच रैक ऑन विच डेटा नोड. ओके फाइन. सो आफ्टर टेकिंग इट गेट बैक. देन थर्ड क्या है? उसको मिल गया है जो मास्टर था उनसे. अभी HDFS क्लाइंट कहाँ पे गया? वो पर्टिकुलर डेटा के पास गया. अभी वो डेटा के पास जाने के बाद एक ही अटेम्प्ट में उसको डेटा मिलेगा क्या? मिलेगा, बट डेटा इज केप्ट इन रेप्लिकेशंस. ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे रेप्लिकाज है. तो विच इज़ द ओरिजिनल कॉपी? इफ क्लाइंट वांट टू गो टू ओनली ओरिजिनल कॉपी, यू हैव टू फाइंड आउट द रैक. सो स्लेव्स कौन है? अभी मास्टर नेम नोड है. स्लेव्स कौन है? डेटा नोड्स है. यानी कि ये डिफरेंट कम्युनिटी सर्वर्स है. ओके, तो जहाँ पे भी चाहिए तो 4th नंबर का एक्शन देख लीजिए, यहाँ पे भी रीड हो सकता है. उसको अगर ये वाले कम्युनिटी सर्वर पे रीड करना है तो 5 नंबर का एक्शन देख लीजिए, वहाँ से वो रीड कर लेगा. फाइन. एंड जब भी उसका काम हो जाएगा तो जैसे पहले ओपन किया था उसको वैसे क्या करना है? क्लोज करना है. तो इफ़ एनी HDFS क्लाइंट, यानी कि कोई भी हडूप यूज़र अगर कुछ डेटा रीड करना चाहता है हडूप के अंदर का, तो दिस इज द एनाटॉमी. लेट्स गो टू द स्टेप्स. तो फर्स्ट स्टेप्स क्या बोल रही है? फर्स्ट स्टेप जो अभी मैंने आपको पूरा यहाँ पे जो 1 2 3 4 जूम करके दिखाया कि क्या हो रहा है कौन से स्टेप में, उसका एक्सप्लेनेशन है 1 by 1. स्टेप 1 में क्या हो रहा है? क्लाइंट ओपन्स द फाइल, इट विशेष टू रीड, उसको रीड करना है बाय कॉलिंग ओपन फंक्शन ऑन द फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट. ओके फाइन. सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? DFS कॉल द नेम नोड यूजिंग रिमोट प्रोसीजर कॉल. नेम नोड तो उसकी ऐसे साइड में रखी हुई नहीं रहेंगी ना, कहीं पे तो भी रिमोटली लोकेटेड है, बिकॉज वी आर इन व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. तो रिमोट प्रोसीजर कॉल जो रहेगा उसके हेल्प से क्या करेंगे? नेम नोड के पास जाएंगे, मास्टर के पास. फॉर व्हाट? to determine the location of the first few blocks in the file. For each block, the name node returns the addresses of the data nodes that have a copy of that particular block. जैसे कि मैंने बोला मास्टर के पास से उसका लॉग चेक करके पूरा लेके आना है आपको डिटेल्स, एंड देन आपको कम्युनिटी सर्वर्स पे जाने को मिलेगा. स्टेप 3 में क्या हो रहा है? रीड. एक्चुअली रीड. द क्लाइंट्स देन कॉल रीड फंक्शन ऑन द स्ट्रीम DFS input stream which are stored the information node addresses for the primary few blocks within the file, then connect to the primary data node for primary block in the file. Fine. 4th number पे actual read process हो रही है. Data is streamed from the data node back to the client which calls read repeatedly. अभी जितनी भी बार उसको रीड करना है, कुछ रीड कर लेना है, अभी एक झटके में वो सब कुछ रीड कर सकता है, वो एक ओपन फंक्शन के साथ एंड वो एक रिमोट प्रोसीजर कॉल के साथ. 5th स्टेप में क्या हो रहा है? व्हेन द एंड ऑफ द ब्लॉक इज रीच्ड, DFS इनपुट स्ट्रीम विल क्लोज द कनेक्शन टू द डेटा नोड, देन फाइंड्स द बेस्ट डेटा नोड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक. ओके फाइन. व्हेन द क्लाइंट हैज फिनिश द रीडिंग, द फाइल फंक्शन इज कॉल्ड क्लोज फंक्शन, उसको कॉल करना पड़ेगा ऑन द FS data input stream. Fine. I hope you understood. Let's move to the anatomy for write. Next we'll check out how files are written to the HDFS. Consider the diagram for better understanding. Sorry for some blur diagram, but I will zoom for all of you. See here, अगर HDFS क्लाइंट को अभी रीड करना था तो ओपन किया, नेम नोड के पास गया, फिर उसने क्या किया, एक बार क्या किया था उसने? रीड फंक्शन कॉल किया था एंड देन एक्चुअल कम्युनिटी सर्वर्स पे उसने रीड फंक्शन चलाया था. अभी राइट अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी भी पहले मास्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा. सो सेकंड स्टेप इज
क्रिएट, यानी कि हमें क्रिएट करना है, ये हम पहले मास्टर को बताएंगे। ओके, जब कंप्लीट होगा हमारा तो आप देख रहे हैं 7 नंबर का स्टेप, वो भी हमें मास्टर को यहाँ पे बताना है कि हाँ यार मेरा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि हमारा HDFS जो है वो राइट वन रीड रिपीटेडली ये प्रिंसिपल पे चलता है, यानी कि राइट वंस यानी कि एक ही बार आपको राइट करने को मिलेगा, वो भी सब कुछ नेम नोड के एक क्या बोल सकते हैं हम, एग्जामिनेशन के अंदर पूरा इन्विजिलेशन जो करेगा वहाँ पे वो नेम नोड रहेगा। फाइन, सो दिस इज द एनाटॉमी फॉर राइट। लेट्स चेक आउट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, द क्लाइंट क्रिएट्स द फाइल बाय कॉलिंग क्रिएट फंक्शन ऑन what DFS, डिस्ट्रीब्यूटेड में ही तो है हम अभी। स्टेप 2, DFS मेक्स एन RPC कॉल टू द सेम नोड टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन फाइल सिस्टम्स नेम स्पेस। फाइन, हमें वो फाइल सिस्टम के नेम स्पेस में वहाँ पे विथ नो ब्लॉक्स एसोसिएटेड विथ इट, अभी तो हमें सिर्फ फाइल बतानी है उसको कि हमें इतनी बड़ी फाइल स्टोर करनी है, राइट करनी है। फाइन, द नेम नोड परफॉर्म्स वेरियस चेकआउट टू मेक श्योर दैट फाइल डजेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो आपको राइट नहीं करने को मिलेगा, ये काम नेम नोड का रहेगा कि नेम नोड हैज़ टू चेक ऑन ऑल द कम्युनिटी सर्वर्स दैट पर्टिकुलर फाइल इज absent. Fine. Step 3. Step 3 is missing here. Oh sorry. Fine. Very simple. Third step is very simple. You have to call here a write function with fs data output stream. Fine. Then fourth number का step जो है वो एक्चुअल कमोडिटी सर्वर की जो रैक्स है उनमें रेप्लिकेस के साथ सब कुछ हो रहा है। सो यू कैन सी आउट गोइंग एरोज, इवन इनकमिंग एरोज, 4 2 रेप्लिकास, देन 5 2 रेप्लिकास। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप क्या कर रहा है, लेट्स चेक आउट। सिमिलरली सेकंड डेटा नोड स्टोर्स द पैकेट एंड फॉरवर्ड्स इट इनटू द थर्ड डेटा नोड इन द पाइपलाइन। देन स्टेप 5 में क्या हो रहा है, DFS आउटपुट स्ट्रीम सस्टेन्स एन इंटरनल क्यू of the packet that are waiting to be. Step 6 में क्या हो रहा है, फर्स्ट चेक द डायग्राम। 6 में क्लोज हो रहा है। ओके, उसका पूरा राइटिंग हो चुका है सब रैक्स में। दिस एक्शन सेंड्स अप all the remaining packets to the data node pipeline and waits for the acknowledgement before connecting to the name node to signal whether the file is complete or not. अभी राइट तो किया है बट परफेक्टली राइट हुआ है कि नहीं विथ रेप्लिकास, इसका एक्नॉलेजमेंट आना बाकी है, तब तक ये फाइल हम क्लोज नहीं करेंगे और हमारा नेम नोड किसी को बोलेगा नहीं कि हम लोगों ने डेटा राइट किया है। तब तक जो दूसरे क्लाइंट्स रहेंगे ये पुराना डेटा ही रीड करेंगे, फेच करेंगे। जब एक्नॉलेजमेंट आएगा तब कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, यू विल सी इन स्टेप नंबर 7. सो this is the summary for today's lecture, that what HDFS follows write once and read many models. So we can't edit the files that already stored in the HDFS, but we can include it again reopening the file, यानी कि हम उसमें अपेंड कर सकते हैं। ओके, हम उसमें कुछ अपेंड कर सकते हैं, बट अभी हम उसको क्या कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। दिस डिज़ाइन अलाउज HDFS टू स्केल अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्करेंट क्लाइंट्स, यानी कि इससे क्या हुआ है, ईजी स्केलिंग फीचर जो है वो आपको मिला है HDFS से। दिस सेटिस्फाई एंड हिंस प्रूफ हियर। दिस डिज़ाइन अलाउज HDFS टू स्केल to a large number of concurrent clients because the data traffic is spread across the data nodes in the cluster. Thus, it increases availability, scalability, and even throughput of the system also. Yes, this will check out. Let's take the recap of our syllabus. In our first lecture, on 17th May, we have completed big data, introduction to the Google file system we have seen in the second lecture. In third lecture, we have seen Hadoop architecture. Okay, we have also seen Hadoop storage, and in today's lecture, that is in fifth lecture, a common Hadoop shell commands we have seen, and even the second point we have covered in today's lecture, that is anatomy for write and read. Okay, from next lecture we will start from the name node and secondary name node, this line. Okay,
Fine, thank you for today's lecture. Bye, take care all of you, stay home, stay safe.